Hello students, welcome to the Gyan Manjir Vidyapit Mahua online education. I Abhay Vyas is today going to resume our syllabus with the first chapter, in which at last we have seen the different units of computer. Right? We have discussed about the basic components of computer. These all are the components that you are observing in this chart. Right? Now the mainly there are three units are there in a computer process. Computer की जो भी process है उसके अंदर there are three unit is responsible. The first unit that is input unit, the second unit that is processing unit, and third unit that is output unit. Right? These three units are there. These all are the components of computer. Now to understand this chart with the process, first of all I would like to give introduction about each and every concept which is available over here, in which we are going to observe the first thing, that is input unit. So that we are going to see the first unit, that is input unit. Now see the concept of a main topic, that is simple model of a computer. राइट जो कंप्यूटर बेसिक टास्क कंप्यूटर का है वो क्या है, तो कि कंप्यूटर जो है वो इनिशियली इनपुट लेगा, इनपुट के ऊपर प्रोसेसिंग करेगा और प्रोसेसिंग के बाद एट लास्ट आउटपुट प्रोवाइड करेगा. राइट, तो दिस ऑल आर द डिस्कशन विच इज गिवन इन दिस पैराग्राफ्स. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फर्स्ट यूनिट, दैट इज इनपुट यूनिट. राइट, बेसिकली इनपुट यूनिट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू कलेक्ट द इनपुट फ्रॉम द यूजर. राइट, इनपुट जो है वो यूजर के पास से लेगा. इनपुट में कौन कौन सी चीज लेगा, तो इनपुट में जो है वो डेटा लेगा और इंस्ट्रक्शन लेगा, और इंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए देगा. तो दिस इज अबाउट द इनपुट यूनिट. राइट, नाउ इनपुट लेने के लिए वी नीड सम डिवाइसेस. विदाउट द इंटरेक्टिंग विद द डिवाइस वी आर नॉट एबल टू सेंड द इनपुट. सो दैट टू टेक अ इनपुट, the device name which is given over here, that is keyboard, mouse, joystick, barcode reader, universal serial bus, that is USB pen drives, right? USB devices, then hard disk and compact disk. These all are the resources through which you can get the input from the user. It depends on what you are going to enter to the computer, right? ये उसके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन से डेटा कंप्यूटर को इनपुट के तौर पे दे रहे हैं. राइट, so based on this all the specific requirement you can use the specific devices. For example, कि अगर आप नॉर्मली कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ को टाइप करते हो, आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए कीबोर्ड का यूज़ करोगे. राइट, so you just enter the data with the help of keyboard. But while you visit any particular mart, so at that time to get the input, the barcode reader is there. जब भी आप प्रोडक्ट परचेज करने जाते हो तो प्रोडक्ट के पीछे बारकोड जो है वो दिया गया होता है. सो बारकोड रीडर कर मशीन है वो प्रोडक्ट के ऊपर बारकोड को स्कैन करेगा और ऑल द डिटेल्स रिलेटेड टू द प्रोडक्ट व्हिच इज फेच्ड ऑटोमेटिकली इनसाइड अ कंप्यूटर. राइट, सो इट इज बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट. यू कैन यूज एनी पर्टिकुलर डिवाइसेस व्हिच इज गिवन ओवर हियर. राइट, वंस द स्पेसिफिक इनपुट इज कलेक्टेड, दिस इनपुट which is converted into the machine readable form. right, एक बार इनपुट आ गया तो इनपुट जो है वो बेसिकली डिजिटली कंप्यूटर के अंदर आएगा ना. वट एवर द यू आर टाइपिंग, सपोज यू आर टाइपिंग द थिंग्स, तो डिजिटली द पर्टिकुलर इनपुट विच इज कम्स इनसाइड अ कंप्यूटर. बट कंप्यूटर इज नॉट अंडरस्टैंड वट एवर वी आर कन्वेइंग. हम जो इंग्लिश लैंग्वेज में कंप्यूटर के अंदर कोई भी डेटा इंसर्ट करते हैं, बट कंप्यूटर इज नॉट अंडरस्टैंड दिस डेटा. सो वट द नेक्स्ट प्रोसेस विल बी देयर. The next process will be that all the input that you have entered which is converted into machine readable form. मशीन समझ सके वैसी भाषा में कंप्यूटर क्या करेगा, जो भी आपने इनपुट सेंड किया है उस इनपुट को कन्वर्ट करेगा. गेटिंग? so this is about the input device. This is about the input unit, right? The next concept which is available over here, that is memory and control unit. Right, basically the name says itself the work that memory, that means whatever the data we would like to store within the computer we can store with the help of memory. की मदद से हम कोई भी डेटा कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर सकते हैं.
राइट। बट डेटा कंप्यूटर के अंदर जब भी आपको स्टोर करना है तो वो सेव करने के लिए स्टोर करना है, इट इज नॉट नेसेसरी, बट सम ऑफ द डेटा विच यू रिसेंटली यूज्ड, विच यू रिसेंटली एंटर, सपोज नोटपैड के अंदर अगर कोई भी इंफॉर्मेशन, मैं यहाँ पर एक चीज ओपन करता हूँ, दैट इज नोटपैड। अभी इस नोटपैड के अंदर मैं ये जो टाइप कर रहा हूँ, दिस इज डेटा, राइट, ये इंफॉर्मेशन मैंने टाइप की। अभी इस फाइल को मैंने सेव नहीं की, फिर भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन मुझे दिख रही है, दिस इज डेटा। सो ये इंफॉर्मेशन जो है वो मेमोरी के अंदर किसी भी जगह पर होगी, दैट्स व्हाई आई एम एबल टू सी द थिंग्स। विदाउट सेविंग योर डेटा इज ऑल्सो अवेलेबल विद इन द मेमोरी। अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन सेव नहीं करते हो तो भी आपकी इंफॉर्मेशन मेमोरी के अंदर तो अवेलेबल होती ही। सेव की गई इंफॉर्मेशन तो डेफिनेटली मेमोरी के अंदर परमानेंटली स्टोर होती है, बट विदाउट सेविंग वट एवर द थिंग्स यू आर टाइपिंग ओवर हियर, दैट इंफॉर्मेशन विच इज ऑल्सो अवेलेबल विद इन द मेमोरी फॉर द टेम्पररी पर्पज, टेम्पररी टाइम के लिए वो भी डेटा जो है वो मेमोरी के अंदर सेव रहेगा। सो यहाँ पर कौन सी चीज, कौन सा कंसेप्ट सामने आया, डेटा जो है वो मेमोरी के अंदर दो टाइप में रह सकता है। एक जो है वो परमानेंट सेव हो सकता है, जो भी आप फाइल को सेव करो यहाँ पर फाइल में जाकर, दैट डेटा विच इज परमानेंटली स्टोर्ड विद इन द मेमोरी, एंड राइट नाउ आई एम नॉट सेविंग द डेटा, मैंने जो डेटा है उसे सेव नहीं कर रहा है, तो ये डेटा जो है वो टेम्पररी स्टोर होगा, राइट। सो टू टाइप ऑफ स्टोरेज मैकेनिज्म इज दैट, टेम्पररी स्टोरेज एंड परमानेंट स्टोरेज, राइट। So we can say that there are two type of memory inside a computer, that is primary memory and secondary memory, right, primary memory and secondary memory। but memory को देखने से पहले एक यहाँ पर चीज आती है, एक नया कंसेप्ट आ रहा है, उसका नाम है वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल का मतलब जिस चीज का नाश हो जाता है ना, जो डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसे हम वोलेटाइल कहते हैं, राइट, वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी का मतलब ये है कि यहाँ पर देखो आप नोटपैड के अंदर मैंने लिखा है दिस इज डेटा, ये फाइल मैंने परमानेंटली सेव नहीं की है, तो यहाँ पर जो है वो फाइल यहाँ पर मेमोरी के अंदर कहीं पर होगी, दैट्स व्हाई आई एम एबल टू सी द थिंग्स। बट अचानक मेरा लैपटॉप जो है, मेरा कंप्यूटर जो है वो बंद हो गया, या तो लाइट ऑफ हो गई, या तो कोई टेक्निकल खराबी की वजह से ये कंप्यूटर मेरा बंद हो गया। सो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्योंकि मैंने ये इन्फॉर्मेशन को सेव नहीं की है। अगर सेव की होती ना तो लैपटॉप और कंप्यूटर अगर मैं फिर से रिस्टार्ट करता तो वो इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाती, बट यहाँ पर सेव नहीं है। तो अगर मेरा कंप्यूटर या तो लैपटॉप जो है वो ऑटोमेटिकली शट डाउन हो गया विदाउट सेविंग द फाइल, सो दिस इंफॉर्मेशन विच इज ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय, ये इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। सो उसे इस टाइप का मेमोरी को क्या कहते हैं, वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, जिसका नाश हो जाता है। कब नाश होता है, जब भी आप के मशीन के अंदर पावर सप्लाई बंद होता है, राइट, या तो कोई टेक्निकल खराबी आती है और आपका मशीन जो है वो, कंप्यूटर जो है वो बंद हो जाता है, एट दैट टाइम योर डेटा इज ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय। सो दिस काइंड ऑफ मेमोरी विच इज नॉन एज वोलेटाइल मेमोरी, द कंसेप्ट इज अवेलेबल ओवर हियर, दैट इज वोलेटाइल मेमोरी, गेटिंग। अभी वोलेटाइल मेमोरी जो है वो कंप्यूटर के अंदर है, जिस मेमोरी का दूसरा नाम है वो क्या है, प्राइमरी मेमोरी। यू कैन ऑल्सो से वोलेटाइल मेमोरी इज अ प्राइमरी मेमोरी, और प्राइमरी मेमोरी इज अ वोलेटाइल मेमोरी। रेडी, प्राइमरी मेमोरी के कई नाम है। यू कैन से प्राइमरी मेमोरी एज अ टेम्पररी मेमोरी, दैट मीन्स राइट नाउ द डेटा इज अ टेम्पररी, until I save the data becomes a temporary data, right, जब भी मैं सेव करूंगा तब ये परमानेंट हो जाएगा। और यू कैन से इट इज अ मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी इज अ मेन मेमोरी। उसे मेन मेमोरी क्यों कहते हैं, बेसिकली मेन मेमोरी तो अगर आप लोग सोचोगे तो डेटा परमानेंट सेव हुआ, दैट मीन्स द मेमोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट प्राइमरी मेमोरी इज नॉन एज अ मेन मेमोरी। मेन मेमोरी क्यों है प्राइमरी मेमोरी, बिकॉज इनिशियली जब भी आप कोई भी फाइल के अंदर डेटा इंसर्ट करते हो ना, तो हमारी नॉर्मल हैबिट क्या होती है, फाइल को ओपन करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने नोटपैड ओपन किया, नोटपैड के अंदर मैंने कंटेंट टाइप की, तो ये कंटेंट इनिशियली कहाँ पर होगी, प्राइमरी मेमोरी के अंदर होगी ना, वोलेटाइल मेमोरी के अंदर होगी। वोलेटाइल दैट मीन्स प्राइमरी,
विदाउट द प्राइमरी मेमोरी यू आर नॉट एबल टू ओपन एनी प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम अभी नोटपैड आप देख रहे हो ना, वो भी प्राइमरी मेमोरी के अंदर ही है। उसके अंदर जो भी कंटेंट आपने टाइप की, वो कंटेंट भी अभी कहाँ पर है? प्राइमरी मेमोरी के अंदर, राइट। सो प्राइमरी मेमोरी इज अ मेन मेमोरी, क्योंकि टेम्पररी डेटा स्टोरेज, जब भी आप कंप्यूटर का यूज करते हो तब ऑलवेज टेम्पररी डेटा का स्टोर जो है वो मेमोरी में होता ही है। टेम्पररी डेटा को अगर आपको सेव करना है ना, तो ही वो डेटा कहाँ पर जाएगा? परमानेंट मेमोरी में जाएगा। बट यहाँ पर टेम्पररी मेमोरी के अंदर ही हर एक जो भी आप वर्क करते हो वो बेसिकली परमानेंट मेमोरी के अंदर ही स्टोर रहता है। सो परमानेंट मेमोरी इज अवर, सो द टेम्पररी मेमोरी इज अवर प्राइमरी मेमोरी, राइट। ये जो है वो डेटा टेम्पररीली स्टोर है। तो ये मेमोरी कौन सी हुई? हमारी प्राइमरी मेमोरी हुई, दैट इज मेन मेमोरी। गेटिंग? दिस इज अबाउट द प्राइमरी मेमोरी। बट प्राइमरी मेमोरी इज नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन। ये जो है वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि हमें जो है आज कोई भी फाइल हम कंप्यूटर में सेव करते हैं, दैट फाइल वी नीड अगेन आफ्टर द रिस्टार्टिंग अवर कंप्यूटर। आज हमने जो फाइल सेव की वो मुझे 2 दिन या तो 3 दिन या तो 2-3 साल के बाद वो फाइल मुझे चाहिए, उसके इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, राइट। सो वो थिंग जो है वो परमानेंटली डेटा स्टोरेज की एक प्रोसेस है, जिसको आप इस फाइल को आपको क्या करना होगा? आपको सेव करना होगा। यू विल हैव टू सेव द फाइल बाय द पर्टिकुलर नेम। कोई एक नाम से इस फाइल को आपको सेव करना होगा। यू कैन गिव द नेम, यू कैन सेव द फाइल। आफ्टर द सेविंग द फाइल, योर फाइल बिकम्स द परमानेंट। ये फाइल जो है वो परमानेंट हो जाती है, तो आप फ्यूचर में उसका यूज कर पाते, राइट। अभी एक बार इस फाइल को हमने सेव कर दिया, राइट। एक बार किसी भी फाइल को हमने डेटा टाइप करने के बाद सेव कर दिया। सेव करने के बाद अगर कंप्यूटर ऑटोमेटिकली शटडाउन हो जाएगा, या तो टेक्निकल खराबी होगी या तो पावर कट होगा, कंप्यूटर ऑटोमेटिक शटडाउन हो गया, तो जब भी आपका ये जो प्रॉब्लम है उसे आप रिजोल्व करोगे, मीन्स अगेन यू कैन स्टार्ट द कंप्यूटर। सो एट दैट टाइम यू विल गेट द फाइल। आपको जो है वो फाइल अगेन मिल जाएगी। फाइल ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय नहीं होगी, क्योंकि फाइल के साथ आपने क्या किया है? फाइल को आपने सेव कर दिया है, राइट। सो सेव्ड फाइल यू कैन अगेन ओपन, यू कैन अगेन गेट द डेटा फ्रॉम द सेव्ड फाइल। सो ऐसी मेमोरी को हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी मेमोरी, और यू कैन से द ऑक्सिलरी मेमोरी, राइट। सेकेंडरी और ऑक्सिलरी मेमोरी, दैट मीन्स once the computer is switched off or computer is restart or reset, your data will not loss। डेटा आपका लॉस नहीं होगा, राइट। एक बार अगर कंप्यूटर जो है वो शटडाउन हो गया, या तो कंप्यूटर के अंदर कोई मिस्टेक, कोई खामी आई, तो मेन मेमोरी जो है ना, प्राइमरी मेमोरी, उसके अंदर डेटा डिस्ट्रॉय हो सकता है, लेकिन परमानेंट मेमोरी के अंदर डेटा विल नॉट ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय। सो दिस टाइप ऑफ मेमोरी विच इज नॉन एज सेकेंडरी और ऑक्सिलरी मेमोरी, राइट। दिस सेकेंडरी और ऑक्सिलरी मेमोरी इज नॉट अ वॉलेटाइल। ये मेमोरी जो है वो वॉलेटाइल नहीं है, मीन्स नाशवंत नहीं है। एक बार सेव हो गया, दैट मीन्स योर डेटा विच इज रिसाइड्स विद इन द मेमोरी, यू कैन रिकलेक्ट द डेटा। आप जो है वो डेटा को रिकलेक्ट कर सकते हो, राइट। सेकेंडरी मेमोरी जो है उसके अंदर कौन कौन से डिवाइसेस के यूज कर सकते हैं? तो सेकेंडरी मेमोरी, दैट मीन्स डेटा कहाँ पर स्टोर होता है सेकेंडरी मेमोरी में? तो डेटा स्टोरेज के लिए हार्ड डिस्क, हमारे कंप्यूटर के अंदर सीपीयू के अंदर जो डिस्क है उसका नाम है हार्ड डिस्क, राइट। तो हार्ड डिस्क इज अ स्टोरेज ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। स्टोरेज जो है वो हार्ड डिस्क के अंदर हम सेकेंडरी मेमोरी का नॉर्मली करते हैं। या तो कॉम्पैक्ट डिस्क, यू कैन से द सीडी, जो सीडी प्लेयर पहले आते थे, आज भी सीडी प्लेयर कई लोग यूज करते हैं, राइट। सीडी, डीवीडी, दिस ऑल आर द परमानेंट स्टोरेज। Pen drive is also an example of permanent storage. You can store, you can save the data within the pen drive, right? So these all are the non-volatile devices, right? So basically, primary memory is a volatile, secondary memory is non-volatile. और यहाँ पर एक और भी डिफरेंस है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में, कि सेकेंडरी मेमोरी जो है ना, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, ये सारी जो मेमोरी है वो लेस एक्सपेंसिव है, राइट। उसका इतना ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। लेकिन प्राइमरी मेमोरी इज अ एक्सपेंसिव। प्राइमरी मेमोरी जो है वो काफ़ी कॉस्टली है, गेटिंग। बट उसका एक दूसरा एडवांटेज ये भी है कि प्राइमरी मेमोरी जो है वो कॉस्टली तो है, लेकिन प्राइमरी मेमोरी का एक डिसएडवांटेज है, वो है प्राइमरी मेमोरी डेटा स्टोरेज
काफ़ी कम प्रोवाइड करता है। प्राइमरी मेमोरी का नॉर्मली डेटा स्टोरेज जो है वो 2 GB, 4 GB, 6 GB, 8 GB या तो 10 GB तक शायद कंप्लीट हो जाएगा। बट सेकेंडरी स्टोरेज दैट मीन्स हार्ड डिस्क जो है ना, वो हार्ड डिस्क के अंदर आप डेटा स्टोर अप टू 1 या तो 2 TB तक कर सकते हो। दैट मीन्स अप टू द GB से भी ज़्यादा, मोर देन द GB, राइट। You can normally hard disk is available of 250 GB, 500 GB, right? 1 TB, that is 1024 GB. Getting? So the memory capacity is higher in a secondary memory as comparing with the primary memory. Getting? अभी इसको एक short way में मैं यहाँ पर लिखता हूँ. Suppose I am going to give you some differences, that is about the primary memory in front, secondary memory, right? In the primary memory we can say that it is main memory, or you can say it is volatile memory. On the other hand, secondary memory is auxiliary memory, right? The other name of secondary memory, that is auxiliary memory, or you can say it is non-volatile memory. This is the first difference. The second difference is primary memory is more expensive, right? Then the secondary memory is less expensive, right? This is the second difference. It is more expensive, secondary memory is less expensive. Then the primary memory storage capacity is less, right? Less storage in primary memory. Then here more storage, as comparing with the primary memory, it will give us the more storage. And the fourth different, that is examples. कौन सी examples कौन सी मेमोरी जो है वो प्राइमरी मेमोरी है? तो उसके नॉर्मल एग्जांपल्स है रैम, रोम. दिस बोथ आर द प्राइमरी मेमोरी, राइट? रैम एंड रोम, दिस ऑल आर द प्राइमरी मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल्स के अंदर अगर हम देखें तो हार्ड डिस्क, CD, DVD, देन pen drive, right? These all are the examples of secondary memory. So this is about the primary memory and secondary memory. Getting? You will have to yes, in between I would like to tell you one thing, that you will have to write down this difference in your book. This is your homework, right? Primary memory versus secondary memory. You will have to write down these 4 the differences in your book. Now we are resuming the session. The next concept, which is very interesting concept, that is arithmetic and logical unit and control unit. These both are the unit which is available in this specific chart, right? So normally कंप्यूटर इज यूज टू कैलकुलेट द थिंग. कंप्यूटर जो है वो क्या करता है? कैलकुलेशन के सारे टास्क परफॉर्म करता है. So ALU, that is arithmetic and logic unit. Arithmetic that means calculations, and logic that means जो भी
लॉजिकल टास्क होता है, जो भी डिसीजन मेकिंग टास्क होता है वो लॉजिकल होता है, तो वो सभी टास्क जो है वो ये यूनिट सॉल्व करता है। और ये यूनिट कहाँ पर होता है? सीपीयू के अंदर, राइट। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट विच इज अवेलेबल विद इन द सीपीयू, एंड arithmetic and logical computation, that means calculation which is performed by this arithmetic and logic unit. Getting? This is ALU. So जो भी कैलकुलेशन के टास्क जब भी आप कंप्यूटर के मदद से परफॉर्म कराते हो, दैट इज एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड द ऑल द रेस्ट ऑफ द कैलकुलेशन विच इज परफॉर्म बाय द ALU. एंड द नेक्स्ट unit which is named as control unit. So what the control unit will do? Control unit manages execution of instruction and control operations of other components of a computer. Right? जो भी इंस्ट्रक्शन, जो भी इनपुट्स आप कंप्यूटर को देते हो, उसका एग्जीक्यूशन करवाना, उसके ऊपर कंट्रोलिंग, उसके ऊपर ऑपरेशन करवाना, और जो भी कंप्यूटर के अदर कंपोनेंट्स है, राइट, उस कंपोनेंट्स के सारे ऑपरेशन को ऑब्जर्व, उसको कंट्रोल करना. दैट मीन्स दिस ऑल आर द कंपोनेंट्स, आउटपुट, सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, इनपुट, उन सब के ऑपरेशन को कंट्रोल करने का टास्क जो है वो कंट्रोल यूनिट का है. राइट. व्हाट इज द यूज ऑफ कंट्रोल यूनिट? I repeat this thing once again. Control unit which executes the instruction whatever we have given to the computer, उसको execute करता है, और ये जो remaining जो भी components कंप्यूटर के हैं उसके ऊपर कंट्रोलिंग करता है, उसका सारे ऑपरेशन जो है होते हैं ना, उसको कंट्रोल करने का वर्क जो है वो कंट्रोल यूनिट करता है. Getting? So this is about the specific all the units. और ये ALU और कंट्रोल यूनिट, ये दोनों यूनिट किसके अंदर आते हैं? CPU के अंदर, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. जब भी आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो लैब के अंदर, तो आप जो है स्टार्ट करने के लिए CPU के अंदर एक बटन के ऊपर क्लिक करते हो, राइट. दैट बटन इज अ पावर ऑन बटन. सो उस बटन, पावर बटन के ऊपर आप क्लिक करते हो, एट दैट टाइम योर CPU विच इज स्टार्टेड. सो दिस CPU बॉक्स कंटेन्स द अरिथमेटिक, लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट. राइट. ये दोनों यूनिट जो है वो CPU के पास होता है. बेसिकली CPU जो है उसको हम ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर, वी कैन कॉल द CPU एज अ ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर. कंप्यूटर का दिमाग जो है वो है CPU. राइट. CPU के पास ALU और CU, दैट इज अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एंड CU दैट मीन्स कंट्रोल यूनिट. इसके अलावा भी CPU के पास कई चीजें हैं, जिसके अंदर एक चीज आती है वो है कैश मेमोरी. राइट. सीपीयू के अंदर एक ऐसी मेमोरी है जो काफी हाई स्पीड में वर्क करती है. उस मेमोरी को क्या कहेंगे हम? कैश मेमोरी. कैश मेमोरी हैविंग द हाई स्पीड. कैश मेमोरी के अंदर जो है वो टेम्पररी डेटा सारे स्टोर होते हैं. वो जो है वो डेटा को स्टोर करने और डेटा को कंप्यूटर एग्जीक्यूशन के लिए पहुंचाने में कैश मेमोरी की स्पीड जो है वो काफी हाई. So if any MCQ which is asked in the exam, which of the following memory is having high speed? So at that time the answer should be cache memory. This is the cache memory. Getting? And at last, the last unit within this three unit, that is output unit. Normally output, that means whatever the result which is generated by the CPU, that result we can get with the help of output unit. आउटपुट का जो भी यूनिट होता है उसके मदद से हम आउटपुट जो है वो देख पाते हैं. सो द नॉर्मल आउटपुट यूनिट यू ऑलवेज इंटरेक्ट विथ, दैट नेम इज मॉनिटर. राइट. मॉनिटर इज एन आउटपुट यूनिट, जिसके ऊपर आप जो भी कंप्यूटर को इनपुट देते हो उसका आउटपुट जो है वो मॉनिटर की मदद से आप देख पाते हो. बट ऐसे कई सारे आउटपुट यूनिट्स अवेलेबल है. राइट. इट इज बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट. आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप अलग अलग आउटपुट यूनिट जो है उसका यूज कर सकते हो. जैसे कि प्रिंटर है, प्लॉटर है, उसके अलावा कई सारे आउटपुट यूनिट है, जैसे कि स्पीकर्स, हेडफोन्स. दिस ऑल आर द आउटपुट यूनिट थ्रू विच यू कैन लिसन द सॉन्ग. राइट. सो बेसिकली देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटपुट यूनिट आर अवेलेबल. नॉर्मली आउटपुट यूनिट कंटेन्स सम ऑफ द फैसिलिटी लाइक डिस्प्ले स्क्रीन. मॉनिटर के अंदर डिस्प्ले की जो स्क्रीन होती है, स्क्रीन के अंदर भी कई सारे ऑप्शंस होते हैं. मीन्स स्क्रीन की कई सारी टाइप्स होती है. आप जो है वो स्क्रीन की साइज भी चेंज कर सकते हो नॉर्मली.
कई टाइप के मॉनिटर्स आते हैं। पहले के समय में जो मॉनिटर्स आते थे वो कैसे होते थे, ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर होते थे, राइट। उसके अंदर जो है वो स्क्रीन में दो ही कलर के ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि ब्लैक एंड व्हाइट, ओनली टू कलर्ड ऑप्शन वाज देयर, और यू कैन से द ग्रे शेड आउटपुट, यू विल सी द ग्रे शेड आउटपुट, ग्रे शेड में आपको आउटपुट दिखता था। उसके अंदर बेसिकली जो है वो टेक्स्ट, नंबर्स और कलर के ऑप्शंस जो है वो नॉर्मली आते थे, बट नॉर्मली कौन कौन से कलर आते थे, ब्लैक एंड व्हाइट के कलर्स आते थे। बट नाउ डेज यू कैन सी दैट यू कैन सी द हाई क्वालिटी ग्राफिक्स एंड एनिमेशन काइंड ऑफ ऑप्शन। आज के समय में अगर आप देखोगे तो मॉनिटर जो है वो LCD और LED टाइप के मॉनिटर्स है, जिसके अंदर आपको जो है वो कई सारे कलर कॉम्बिनेशंस के ऑप्शन होते हैं, और उसके अंदर हाई डेफिनेशन ग्राफिक्स भी होता है। नॉर्मली जो भी एनिमेटेड मूवी आप देखते हो वो एनिमेटेड मूवी ऐसे मॉनिटर की मदद से ही डिजाइन होते हैं, अदरवाइज while the person is going to design the animated movie they need the particular high definition monitor, so that that person which observe that the our animated or cartoon movie becomes very clear or not, right? So nowadays this kind of device which is used, so this is about the output unit, right? This is a normal thing. Okay, so this all are the component, the basic information of all the component we have discussed. अभी इस कंपोनेंट्स को एक दूसरे के साथ ये कैसे वर्क करता है, दैट वी विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर. दिस इज अबाउट द फर्स्ट लेक्चर. So the homework of today's lecture is you will have to write down the differences. There are 4 differences between the primary memory and secondary memory. You will have to write down the difference. Okay, bye.